So we'll continue from where we stopped in the last class. We are doing area related to circles. And before doing, the example, I'll just revise with a formula which we discussed in the last class. Why? Because certain students were not there. Few students were not there in the class in the last class. So, सबसे पहले area of a sector. So let's say we have a circle, and let's say this is OA and B, and the angle subtended by the arc is theta. So if we have to find the area of this sector OAB, so first area of sector OAB is equal to, अब क्या करेंगे, theta divided by 360 into area of the circle pi r square. If r is the radius of the circle, so theta by 360 into area of the whole circle. So basically, this is just a unitary method which we are doing. So pi r square is the area of the whole circle when the angle is 360 degree. So when the angle is theta degree, theta by 360 per degree हमने area निकाल लिया pi r square को 360 से divide करके और उसको theta से multiply किया तो हम लोगों को area of sector OAB निकल के आ गया, that is theta by 360 into pi r square. Now second, area of segment so अब हम लोग को ये area of segment निकालना है. So this is the area of segment. तो segment का area कैसे निकालेंगे? इस sector के area से अगर हम triangle का area subtract कर देंगे तो area of segment निकल जाएगा. So area of segment is equal to area of sector minus area of triangle. So area of sector is theta by 360 into pi r square. And then you have to subtract the area of triangle. Now the area of triangle can be found out by various methods. So one method is, let's say when we drop a perpendicular here, right? And if we know this angle, then this half of this angle will be theta by 2. And once you have got this angle and you know the radius, then you can find this, let's say this point is C. You can find AC as well as BC using trigonometry, right? So कैसे निकालेंगे? अगर हमारे पास OA दे रखा है, so AC से relation अगर OA का निकालना है, we know that. I'll write it here. So base perpendicular by hypotenuse AC upon OA. इस angle के लिए this side is perpendicular. So AC upon OA is equal to sine theta. So this will give you AC is equal to OA sine theta. Similarly, this OC will be equal to OA cos theta, right? So this is the height of the triangle and base के लिए AC और CB equal होंगे, ठीक है? So you will get AB is equal to twice of OA into sin theta. OA क्या है? R है, R cos theta. This is 2R sin theta. So once you have got the value of AB as well as OC, area of triangle becomes half into base AB into height OC. This is the area of the triangle. So कई सारे methods हैं. अगर आपको ये दिया हुआ है कि ये equilateral triangle form कर रहा है तो √3/4 a square कर लेंगे. So अलग-अलग question में जैसा चीज पूछा होगा उस हिसाब से we can find the value of the triangle, area of the triangle, and subtract it from the area of the sector to get the area of the segment. Is it clear to everyone? Yes, sir.
Have you guys written it? Let me know once you have written it. Written, sir. सभी ने लिख लिया है ना? Now we'll do the second example. So example 2 is find the area of a sector of a circle with radius 4 centimeter and angle 30 degree. So we have this circle. So area of a sector of a circle with radius 4 centimeters. So this is O, A, B. Radius is 4 centimeter and angle is 30 degree. 4 centimeter. Theta is 30 degree. Also find the area of the corresponding major sector. Pi is equal to 3.14 लेने बोल रहा है. Pi is equal to 3.14. तो हम लोगों को पहले एरिया ऑफ द सेक्टर स्मॉलर सेक्टर निकालना, उसके बाद एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर निकालना. So एरिया ऑफ माइनर सेक्टर OAB is equal to theta by 360 into pi r square. Theta है हमारा 30 by 360 into 3.14, radius 4 into 4. So 30 by 12, 4 3s are. So 3.14 into 4 divided by 3. So this will be 4.186 centimeters square. So approximately लिख सकते हैं 4.19 centimeters. So this is the area of minor sector. Area of major sector is equal to, दो तरीके से निकाल सकते हैं. या तो आप एंगल ये वाला यूज कर लो, 360 से 30 को सब्ट्रैक्ट कर लो तो 330 डिग्री हो जाएगा. या तो ये एंगल यूज कर लो, या फिर ठीक है, और उसके अलावा अगर वो एंगल नहीं यूज करना है तो एरिया ऑफ सर्कल से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का जो एरिया है सर्कल के एरिया से सब्ट्रैक्ट कर लो, जो भी आपको आसान लगता है. ठीक है. So if we use this one 330 by 360 into 3.14, 4 into 4, 4 9 times, 3 3 is 9, 3 11 times, 11 into 4 into 3.14. So 46.05 or 46.1 centimeters. Clear बच्चों? Yes, sir. सबके हाफ ईयरलीज के मार्क्स आ गए सभी बच्चों के? नो सर. No, sir. No, sir. किसी का नहीं आएगा. जैसे ही आएगा मुझे मैसेज करोगे अपना अपना मार्क्स. ठीक है सर? मेरा मैंने आपको बता दिया था. हाँ, जिन्होंने बता दिया है वो भी मैसेज जरूर कर दें, मेरे ध्यान में रहेगा, फिर देखता रहूंगा, है ना? ठीक है.
Yes, sir. sir, मैथ्स और साइंस दोनों का, और जो एसएसटी कर रहे हैं और इंग्लिश कर रहे हैं वो भी उसका भी भेजेंगे। लिख लिया सबने? लिख लिया बच्चों? Yes, sir. भाई एनर्जी लेवल हाई रखो तुम लोग, एनर्जी लेवल ऐसे सोने वाला मत रखो, बिकॉज अब तो यही समय आ गया थोड़ा सा ज्यादा एनर्जेटिक होके पढ़ने का। अभी से लेके अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जैसी पढ़ाई करेंगे, जस्ट ये तो मेरी डेट शीट आ गई कौन सी? सर, PT3 और प्री बोर्ड की, मतलब डेट्स बता दी। अच्छा, कब कब है? सर PT3 मेरे नवंबर में है, 18 नवंबर से, एंड बोर्ड प्री बोर्ड्स मेरे 2 हैं, एक दिसंबर में और एक जनवरी में है। हाँ, सर बोर्ड्स कब हो रहे हैं? बोर्ड्स तो मार्च में होगा मेरे ख्याल से, सर फर्स्ट वीक। जैसे डेट्स होते हैं उसी सर डेट। हमारे तो स्कूल की टीचर कह रहे हैं कि होंगे या नहीं होंगे वो भी कंफर्म नहीं है। हाँ, हमारी 1-2 स्कूल की टीचर कह रही हैं कि होंगे या नहीं होंगे बोर्ड्स, वो भी कंफर्म नहीं है। स्कूल के टीचर बेवकूफ हैं। बोर्ड्स कभी भी ऐसा नहीं होगा कि नहीं होगा, 1 महीने डिले हो सकता है बहुत होगा तो, बट आई डोंट थिंक सो कि डिले भी होगा। एवरीथिंग विल बी ऑन टाइम ओनली, सो देयर विल बी। सर लेकिन इतने सारे बच्चे हैं जो लाइक गवर्नमेंट स्कूल से बोर्ड देते हैं, तो उनके पास तो एक्सेस नहीं है टेक्नोलॉजी का, तो सर उनका क्या होगा? टेक्नोलॉजी से क्या करना है तुम? सर मतलब उन्होंने तो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं की ना। अभी सब ऑनलाइन क्लास ले रहा है, ठीक है। सर बहुत लोग नहीं दे रहे सर। उससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत लोग नहीं, बहुत कम लोग हैं जो ऑनलाइन क्लास नहीं ले रहे, और बाकी जो नहीं ले रहे हैं वो सीबीएसई बोर्ड भी नहीं पढ़ रहे हैं, वो स्टेट बोर्ड्स पढ़ रहे हैं। तो स्टेट बोर्ड को उनको चिंता करने की जरूरत है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले बच्चे हैं, ठीक है। तुम अपनी चिंता करो, तुम तो पूरे साल पढ़े हो, तैयारी रखो अपनी। नहीं, सर मतलब डिले हो रहा है ना बोर्ड्स। नहीं डिले होगा, सर पढ़ाई करो चुपचाप। अभी से Yes, तुम sir. लोग काम देना शुरू करते हैं, सब सही हो जाएगा तुम्हारा। तुम लोगों को काम दिए थे एक एक्सरसाइज करने के लिए, उसका क्या है स्टेटस? कोई भी लिख के हाँ सर वो कैम स्कैनर डिलीट हो गया, तो सर अब नया डाउनलोड करना पड़ रहा है। फोटो खींच के, है ना, जेपेग इमेज हमको अपलोड करके भेजो, है ना। नाटक कम किया करो। क्या सर हो गया क्या? मेरा तो कैम स्कैनर चल रहा है। अरे तो ये मेरे स्कैम फोन में वाला चल बच्चा रहा है ना, ये जस्ट जानी को खुद स्कैम है बेसिकली। स्कैम नहीं, स्कैम है, कैम का स्कैम है इसके पास, है ना जस्ट। यस सर। स्कैम और स्कैम में डिफरेंस पता है ना? एम, यस सर, स्कैम तो उनके साथ होता है जिनका सर मतलब ऐसे लुट जाते हो। तुम हो, तुम जस्ट के साथ स्कैम हो जाता है। सर ये YouTube पे जा रहा है। हाँ, सर मैं फेमस होने वाला हूँ। चलो पढ़ाई में ध्यान दो। Third question. Find the area of segment AYB shown in figure 12.9. So find the area of segment AYB. हमें इस segment का area निकालना है, right? Shown in the figure, if radius of the circle is 21 centimeter, so radius R is equal to 21 centimeter, and angle AOB is 120 degree. Use pi is equal to 22 by 7. So we will use pi is equal to 22 by 7. तो ये वही आ गया, ये देखो एंगल 120 डिग्री दिया हुआ है। अब यहाँ पर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये 60 डिग्री हो जाएगा और ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? ये पॉइंट जो है सेंटर वाला पॉइंट, इसको C मान लो, है ना। तो ये इसका हाइट हो गया और ये इसका बेस हो गया ट्राइंगल का। तो जैसा अभी हम लोग लिख रहे थे ना, पहले हम लोग सेक्टर का एरिया निकालेंगे और उसमें से ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे। उसके लिए पहले OC और AB वगैरह निकालना जरूरी है।
OC is equal to, because ये 60 डिग्री है, राइट, ये रेडियस R है, R cos 60 डिग्री हो जाएगा OC, और AC या AB is equal to twice of AC, which is equal to twice of R sin 60 degree. क्लियर है बच्चों? सो बेसिकली निकाला कैसे? इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल OAC अगर हम लोग लेते हैं, इस ट्राइंगल में cos 60 डिग्री, देखो इस एंगल के लिए ये बेस है और ये हाइपोटेनस है, तो cos 60 डिग्री विल बी इक्वल टू OC by OA, और OC इज इक्वल टू OA क्या है? R है, R cos 60 डिग्री, जो कि यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है। उसी तरह sin 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AC अपॉन OA, so this will give you AC is equal to R sin 60 डिग्री, राइट? तो ये R cos 60 डिग्री हो गया और ये R sin 60 डिग्री हो गया, जो कि हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Okay. Now area of sector, we'll first find area of sector. So area of sector is equal to theta by 360 degree. So total angle ये जो है 120 डिग्री है. So 120 upon 360 into pi r square. Pi का वैल्यू 22/7 है और रेडियस जो है 21 into 21. Is it clear? Yes, sir. So 7 3 times, 120 3 times, and 3 gone. So 22 into 21 हम लोग निकालेंगे area of sector. So area of sector OAB is equal to 462. So area of sector is equal to 462 centimeter square. Now area of triangle OAB is equal to half into base. Base मेरा कितना है? 2r sin 60 degree. या पहले फॉर्मूला लिख लो, half into AB into OC. So this is equal to half into AB is 2r sin 60 degree. Radius है हमारा 21. Sin 60 degree is into OC. OC is R cos 60 degree. 21 into cos 60 degree. Half into gone. 21 into root 3/2 into 1/2. Okay. So this is 21 root 3 divided by 4. Now area of segment is equal to area of sector minus area of triangle. 462 minus 21 root 3 upon 4. So अब आप ये क्या कीजिए, 21 को कॉमन अगर हम लोग ले लेते हैं, सॉरी 21 into 21 441 हो जाएगा. This will be 440. So इसमें से 21 अगर कॉमन ले लेंगे तो this is 22 minus 21 root 3/4. 4 को कॉमन लेके अगर बाहर कर लोगे तो 21/4, 88 minus 21 root 3. There is the answer. And this is a very important question. एग्जाम में आता ही आता है. So how does it become 441? 21 into 21 440.
Okay, sir. Thank you, sir. I missed out 121 by calculation. अच्छे से देख लो और समझ लो. नहीं शिव्या, मैंने पिछली क्लास में ना एक इसका होमवर्क दिया था, एरिया रिलेटेड टू सर्कल का पहला एक्सरसाइज दिया था होमवर्क में. ओके सर। वो करना था हम लोगों को, तो वो मैं फिर से भेज दूंगा ना. वो तुम लोगों को करना. पिछली क्लास में मैंने छोड़ दिया था क्योंकि कुछ बच्चों का एग्जाम खत्म नहीं होता. अब तो सबका खत्म हो गया एग्जाम. यस सर। सबका खत्म हो गया ना, किसी का बचा हुआ नहीं है एग्जाम. अब थोड़ा रेगुलरिटी लाओ अपने होमवर्क वगैरह में. पेरेंट्स रोज पूछते हैं कि होमवर्क देते हैं कि नहीं और बच्चे करते हैं कि नहीं. राइट. तो अगर तुम चाहते हो कि मैं सच सच ही बोलता रहूं, प्लीज करके दे दिया करो. यस सर. तो मैंने आपको मार्क्स बता दिए. हाँ देख लिया. मैथ्स में कम है अभी, उसमें मेहनत करना और आगे. साइंस में भी कम है. दोनों में 45 प्लस होने चाहिए. जी सर. अगले टेस्ट के लिए तैयारी अच्छे से करना. हाँ जी सर. तुम होमवर्क ही नहीं करते, होमवर्क टाइम पे करो. सर वो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का आप बता दोगे? हाँ जी. सर वो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का आप बता सकते हो? मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अभी रिलीज नहीं हुआ है सीबीएसई से. लेट इट कम फ्रॉम सीबीएसई फर्स्ट. सर हर साल सेम नहीं होगा? सेम नहीं है ना, इस साल तो बहुत सारा चीज चेंज हुआ है ना. और सर मतलब एमसीक्यू सर कहाँ से करें? सीक्यू का मैंने सेकंड वाला बुकलेट भेज दिया तो है. लिया ही नहीं तुमने सेकंड? सर वो जो बहुत मोटा सा है वो वाला? 2 बुकलेट मैथ्स का मैंने दिया. एक शुरू में दिया था और एक अभी क्वेश्चन बैंक करके दिया, जो उस दिन तुम बोल रहे थे कि आई कलेक्टेड. सर कलेक्ट तो करा है मैंने, लेकिन सब हम देख लूंगा एक बार सर. मैंने अभी तो खोला नहीं. उसमें 4 एक्सरसाइज जो है एमसीक्यू के हैं, और एक और ओके सर. एमसीक्यू का अलग से बन रहा है, वो अगले वीक में मिलेगा. ठीक है? ओके सर. तो ये इतना मैथ्स का तो इतना हो गया. और फिजिक्स सॉरी साइंस का तुम लोग को इस मंथ के एंड तक मिलेगा एमसीक्यूज. ओके सर. एक मिनट बच्चों. लिख लिया बच्चों? मिटा दें इसको. Yes, sir. Now exercise 12.2. First question is, find the area of a sector of a circle with radius 6 centimeter if angle of sector is 60 degree. Right? So we have to find the area of a sector of a circle with radius 6 centimeter. So this is 6 centimeter radius. Angle of a sector is 60 degree. We have to find area of sector. So simple formula जो हम लोग का है, area of sector is theta by 360 into pi r square. So 60 by 360 into pi का वैल्यू बोला है 22/7 लेने, जब तक कि स्टेटेड नहीं है 3.14 लेने के लिए. तो यहाँ पे 22/7 ही लेंगे into 6 into 6. So 66 times and 6 gone. So this is 132 upon 7. Right? 12.2.
132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसी में लिख छोड़ देना। प्रणव है क्लास में? लिख लिया बच्चों? Yes, sir. यस सर। Yes. लोग आगे आगे करो, मैं पीछे से बना रहा हूँ। जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए प्लीज, जो खुद से कर सकते हैं, डू इट ऑन योर ओन, ओके, सो दैट यू विल हैव अ प्रैक्टिस। Second, find the area of a quadrant of a circle whose circumference is 22 centimeter. So, area of quadrant of a circle. Quadrant of a circle means circle divided into 4 parts. The angle subtended is 90 degree. या तो तुम पाई आर स्क्वायर निकाल के 4 से डिवाइड कर दो, या 90 डिग्री वाला वो यूज कर लेंगे। सो सेक्टर वाला यूज कर लेंगे फॉर्मूला। So area of quadrant of a circle whose circumference is 22 centimeter. That means 2 pi r is equal to 22 centimeter given. So 2 into 22 by 7 into radius is equal to 22. So radius is equal to 22 into 7 by 2 into 22. 22 cancelled, 7 by 2 is equal to 3.5 centimeter. Once you have got the radius, area of quadrant is equal to 90 by 360 into pi r square. So 94 times 1 by 4, 22 by 7. And the value of radius is 7 by 2. तो इसको 7 by 2 into 7 by 2 कर लेंगे, right? So 77 by 8. 77 by 8 centimeter square. Clear बच्चों? Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes. Sir. Third question is the length of the minute hand of a clock is 14 centimeter. तो clock का minute hand मतलब उसका radius हो गया. Okay? So length of the minute hand of a clock is 14 centimeter. So the radius is equal to 14 centimeter. Find the area swept by the minute hand in 5 minutes. So if you see 5 minutes में angle कितना होगा? बेसिकली ये देखो 3 पार्ट में अगर इसको डिवाइड कर दो 90 डिग्री को, तो 5 मिनट्स में कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। टोटल 90 डिग्री होता है। ये एक क्वाड्रेंट मतलब 15 मिनट्स में 90 डिग्री होगा, 5 मिनट में 30 डिग्री होगा। ऐसे भी पर मिनट एंगल कितना होता है? टोटल 60 मिनट्स में 360 डिग्री कवर करता है, तो 1 मिनट में 6 डिग्री कवर करेगा। सो एंगल covered by minute hand in 60 minutes is equal to 360 degree. So 1 minute में 360 by 60, that is 6 degree. So angle covered in 5 minutes is 6 into 5, 30 degree. Once we have got the angle subtended, angle covered by
the minute hand in 5 minutes, we know that 30 degree is the angle covered. ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है. So आपको निकालना है area swept by the minute hand in 5 minutes, means we have to find this area of this sector. So area swept by minute hand in 5 minutes is equal to 30 by 360 into pi r square, 22 by 7 into 14 into 14. 12 times, 7 2 times, 2 6 times, 11 times. So 14 into 11 divided by 3. So 154 by 3. Is it clear, बच्चों? Yes, sir. सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? Yes, sir. सभी बच्चों ने कर लिया बच्चों? दिखा दें? Fourth question. A chord of a circle of radius 10 centimeter. So we have a circle. And the chord of a circle of radius 10 centimeter subtends a right angle at the center. Find the area of their corresponding minor segment and the major segment. So this chord subtends a right angle at the center. This angle is 90 degrees. The circle का radius r is equal to 10 centimeter. Find the area of the corresponding minor segment and the major sector. Pi का value बोल रहा है 3.14 में. So just understand. See, देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है. राइट एंगल ट्राइंगल में ये बेस ले सकते हैं, इसको परपेंडिकुलर ले सकते हैं. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल सीधा हम लोग हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे, तो इसको बेस और इसको हाइट लेके सॉल्व कर लेंगे. और कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल. समझ में आया? देखो इसमें ये बनाने की जरूरत नहीं है. ये सारी चीजें क्यों नहीं बनाने की जरूरत है? क्योंकि ये खुद में ट्राइंगल का, इसको अगर OA को बेस ले लेते हैं और इसको हाइट ले लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डायरेक्टली निकल जाए. सो पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं. सो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा 90 अपॉन 360 into pi r square, 3.14 into 10 into 10, 94 times 3.14 into 100, मतलब 314 by 4. (78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हमारा एरिया ऑफ सेक्टर निकल गया. अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं. एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB is half into base OA into height OB.
So this will be equal to half into base is 10, height is 10. So this is 50 centimeter square. So area of segment is equal to area of sector 78.5 minus 50. So this is 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. उसके बाद जब सेगमेंट का एरिया निकल गया, एरिया ऑफ, उसके बाद सेकंड पार्ट में कह रहा है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकाल लें. सो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू, ये जो बाकी एंगल बचा वो 270 डिग्री है, 360 से सबट्रैक्ट कर लेंगे. So 360 minus 90 divided by 360 into pi r square, that is 3.14 into radius is 10 into 10. So 360 minus 90 is 270. So this is 270 divided by 360 into 314. So this is 93 and 94, 3 by 4 of 314. So 235.5 centimeter square. Is it clear, बच्चों? समझ में आया सबको? Yes, sir. ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाला, सबको आ गया समझ? Yes, sir. जिसको नहीं समझ में आया प्लीज पूछ लो, मुंह बंद करके बैठे रहने से नहीं आएगा. सर एक बार जो एरिया ऑफ सेगमेंट वाले से वो समझा दो. सेगमेंट वाला समझाऊं या ट्रायंगल समझाऊं? ट्रायंगल तो आ गया समझ, वो तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर दिया. सेगमेंट्स क्या करते हैं, मतलब ये सेक्टर जो है ना, ये पूरा है सेक्टर मेरा, ये पूरा, इसको अगर कर लें ये सेक्टर हो गया. अब इसमें से हम लोग को सेगमेंट निकालना है, सेगमेंट निकालना है मतलब ये वाला एरिया निकालना है. अब ये अगर एरिया हम लोग को निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे सेक्टर में से इस ट्रायंगल को सबट्रैक्ट कर लेंगे. ओके सर. ठीक है, सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया सबट्रैक्ट कर लेंगे. तो इसीलिए हम लोगों ने पहले सेक्टर का एरिया निकाला, ट्रायंगल का एरिया निकाला, सेक्टर से ट्रायंगल का एरिया सबट्रैक्ट किया तो सेगमेंट का एरिया निकल गया. सेगमेंट इज दिस. है समझ? समझ आया बच्चों? अक्षत आ गया समझ? यस सर. Can I rub this? Now the fifth question. In a circle of
radius 21 centimeter, arc subtends an angle of 60 degree at the center. So we have a circle. Arc subtends an angle 60 degree at the center. Circle of radius 21 centimeter. R is equal to 21 centimeter. Find the length of the arc. So we have to find the length of this arc. So length of arc AB is equal to theta by 360 into 2 pi r. So this is theta is 60 upon 360, 2 into 22 by 7 into 21. 6 times 7, 3 times 2, 3 times. So this is 22 centimeters. So once we have got the length of the arc, area of sector formed by the arc, area of sector is equal to theta by 360 into pi r square. So 60 by 360 into 22 by 7, 21 into 21. So 21 into 11, 231 centimeters. So sorry, ये सेंटीमीटर होगा. ये 231 सेंटीमीटर स्क्वायर है. अब इसके बाद आपको थर्ड पार्ट कह रहा है एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड. एरिया ऑफ द सेगमेंट, तो ये सेगमेंट का एरिया निकालना है. अब देखो ये 60 डिग्री हो गया. अब this side is equal to this side, radius is equal, so this angle will also be equal to this angle. All these angles will become 60 degrees. So this will become an equilateral triangle. For an equilateral triangle, the area of equilateral triangle कौन बताएगा मुझे फॉर्मूला? मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा. एक लाइन से मैं पूछता हूँ. हाँ जी अक्षत बताइए क्या है इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला जिसका ए होता है साइड. मतलब you have to find the triangle of area of an equilateral triangle whose side is A. फॉर्मूला क्या है इसमें? √3/4a². बहुत बड़ी. √3/4a² होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB is √3/4a². √3/4a कितना है? 21 into 21, right? So this is 441 √3/4 centimeter square. ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया. एरिया ऑफ सेक्टर ऑलरेडी हमें पता है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट थर्ड पार्ट कर रहे हैं. एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल. सो एरिया ऑफ सेक्टर है 231 माइनस 441 √3/4. ऐसे ही छोड़ देंगे इसको, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. क्लियर? Yes, sir. Please note it down.
हो गया बच्चों? Yes, sir. Sixth question. Chord of circle of radius 15 centimeters subtends an angle of 60 degree at the center. Chord of circle of radius 15 centimeter. R is equal to 15 centimeter. Subtends an angle 60 degree at the center. This is 60. This will also be 60, and this will also be 60. अभी तुरंत हम लोगों ने देखा. Find the area of the corresponding minor and major segment of the circle. Pi 3.14 लेना है. Pi का 3.14 लेना है. Root 3 का वैल्यू 1.73 लेना है. माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है. एरिया ऑफ सेक्टर पहले निकालेंगे. So area of sector is equal to 60 by 360 into pi 3.14 into 15 into 15. Five seven into 5 into 15. 117.75. So this is the area of sector. Area of triangle OAB, root 3 by 4a square. Root 3 by 4 into 15 into 15. So this is 1.73 into 15 into 15 divided by 4. So 97.3125. Area of minor segment is equal to 117.75 minus 97.31. $20.43. So 20.44 centimeters square. ठीक है. अब हम लोगों को एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट भी निकालना है. तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट ये क्या होगा? एरिया ऑफ सर्कल से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दो. माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. एरिया ऑफ सर्कल क्या है? पाई आर स्क्वायर है. सो दिस इज 3.14. रेडियस है 15. 15 into 15 minus of area of minor segment is 20.44. So this is so 686.0625. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. सो इसको लिख लो. विल स्टॉप हियर. और तुम्हारा होमवर्क जो पिछला एक्सरसाइज जो मैंने पहले बताया था, फर्स्ट एक्सरसाइज तुम्हें करना है बुकलेट 1 का. जो फर्स्ट वाला जो मैंने स्टडी मटेरियल दिया था मैथ्स का, उसमें जो पहला एक्सरसाइज है वो फर्स्ट एक्सरसाइज करना है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स वाले सेक्टर.
I'll send you the pointer also, मतलब तुमको स्कैन करके भी भेज देंगे, पता होगा कि क्या करना है। अगली क्लास में नहीं सबमिट करोगे तो फिर वो अगली क्लास में ही बताएंगे क्या करेंगे। लिख लिया सबने? सर आप व्हाट्सएप पे भी भेज दोगे क्या करना है? हाँ जी, वही मैं Yes, sir. I'll send it to you on WhatsApp.